ویلکم ٹو ہیلتھ CZO. اسٹوریج آف فارماسیوٹیکلس. ادویات کو بنانے کے بعد ان کو صحیح سے محفوظ اور ذخیرہ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. پچھلے کئی لیکچرز میں ہم ادویات کی پیکنگ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. اس لیکچر میں ادویات کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ ساری ڈیٹیل اس لیکچر میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز آپ کو ٹائم پر مل سکے. اسٹوریج آف فارماسیوٹیکلس. ادویات کو بنانے کے بعد ان کو کس طرح سے محفوظ کیا جاتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں. The storing of pharmaceutical products and materials up to their point of use is called storage of pharmaceutical products. ادویات کو بنانے کے بعد ان کو صحیح سے محفوظ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے. ادویات یا پھر ادویات کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا جو بھی پیکنگ مٹیریل ہے، اس کو بھی صحیح طریقہ کار سے سٹور کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے. ادویات کو بنانے کے بعد ادویات کو پیک کرنے کے لیے استعمال ہونے والا جو مٹیریل ہے، جس میں شامل ہے کنٹینر، کلوئرز، کارٹن اور باکسز وغیرہ، ان سب کو بھی ادویات ڈالنے سے پہلے بھی محفوظ کرنا ضروری ہے اور ادویات کو اس کنٹینر میں ڈالنے کے بعد بھی اس کو محفوظ کرنا ضروری ہوتا ہے. تب تک دوائی کو محفوظ کرنا ضروری ہوتا ہے جب تک مریض کے پاس یہ دوائی نہ پہنچ جائے. جب دوائی مریض کے پاس پہنچ جائے اور جب اس دوائی کو استعمال کر لے، تب تک ہمیں ادویات کی سٹوریج کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اسی کو ہم اسٹوریج آف فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کہتے ہیں. Now we study the requirements for the storage of pharmaceutical products. فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کو ذخیرہ کرنے کے لیے کون سی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، یہ سب اس ٹاپک میں جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اصل میں فارماسیوٹیکل پروڈکٹ سے مراد ڈرگ یعنی کہ دوائی اور دوائی کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہونے والا پیکنگ مٹیریل ہے. یعنی کہ وہ دوائی جو کہ بنائی گئی ہے، اب اس دوائی کو محفوظ کرنے کے لیے جو بھی کنٹینر، کلوئر، کارٹن یا باکسز وغیرہ کا استعمال کیا گیا ہے، یہ سب بھی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کا حصہ ہی ہیں. اب ہم اس کی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے پہلے سلائیڈ کو ریڈ کر لیتے ہیں. The storage conditions of the pharmaceutical products must be in compliance with the following requirements or other special requirements that are mentioned in the good storage practice. فارماسیوٹیکل پروڈکٹس کو صحیح حالت میں محفوظ کرنے کے لیے چند ایک بنیادی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا پھر وہ تمام اسپیشل ریکوائرمنٹس جو کہ گڈ اسٹوریج پریکٹس کی کتاب میں درج ہیں. یہ سب ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان سب کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نمبر پر ہے اسٹوریج فیسلٹیز مسٹ کمپلائی ود دا لا. ادویات کو اسٹور کرنے کے لیے، ادویات کو محفوظ اور ذخیرہ کرنے کے لیے جو بھی سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. اب یہ سہولیات کون سی ہیں؟ جیسے کہ ادویات کو سٹور کرنے کے لیے کتنا ایریا یعنی کہ جگہ ہونی چاہیے، کون سی دوائی کو فریج میں اور کون سی دوائی کو روم ٹمپریچر میں رکھنا ہے، یہ سب سہولیات قانون کے مطابق ہونی چاہیے. اور قانون کیا کہتا ہے اور ادویات کے قوانین کون سے ہوتے ہیں، یہ سب آپ ڈرگ لا والی پلے لسٹ میں جا کر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے نمبر پر. Precautions must be taken to prevent unauthorized person from entering the store room. کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو اسٹور روم میں داخل کرنے سے پہلے احتیاطی تدابیر لازماً اختیار کرنی چاہیے.
पहली बात तो ये है कि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को कभी भी अद्वियात वाले कमरे में नहीं भेजना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर भेजना ज़रूरी हो, जैसे कि कोई सफाई करने वाला शख्स या फिर अद्वियात को बाहर से अंदर स्टोर के अंदर रखने वाला शख्स, या फिर अगर बिजली का कोई भी स्विच वगैरह ख़राब हो गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लका अगर किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अद्वियात वाले रूम में भेजना ज़रूरी है, तो भेजने से पहले कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी से अपना लेनी चाहिए। यानी कि आपके काम करने वाला कोई भी शख्स उस अनऑथराइज पर्सन के साथ लाजमी से जाए, उसके ऊपर नज़र रखे, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो लाजमी उसको कैमरे की नज़र में देखना चाहिए, या फिर उस शख्स का शनाख्ती कार्ड लेकर अपने पास रख लें और उसका जो भी नंबर है वो नोट कर लें, ताकि अगर कोई शख्स जो है वो वहाँ अंदर जाके कोई गलत किस्म की एक्टिविटीज़ करता है तो उसको बाद में पकड़ना आसान हो जाए। तो इसलिए ऐसे शख्स को कभी भी स्टोर रूम में दाखिल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर इजाज़त देनी ज़रूरी हो जाए तो फिर कुछ एहतियाती तदाबीर लाजमी से इख्तियार कर लेनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर है, स्टोर रूम शुड बी ऑफ सफिशिएंट कैपेसिटी टू अलाउ द ऑर्डरली स्टोरेज ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अद्वियात को महफूज करने के लिए जो भी स्टोर रूम बनाया गया है, उस स्टोर रूम में इतनी जगह होनी चाहिए कि तमाम तर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक तरतीब के साथ रखा जा सके कि कौन सी दवाई कहाँ रखनी है और कौन सी अद्वियात की किस्म किस जगह पर महफूज करनी है। इतनी कैपेसिटी उस स्टोर रूम के अंदर होनी चाहिए कि अद्वियात को बआसानी तरतीब से रखा जा सके। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पर है, स्टोर रूम शुड बी डिजाइंड और अडेप्टेड टू इंश्योर गुड स्टोरेज कंडीशंस। दे शुड बी क्लीन एंड ड्राई and maintained within acceptable temperature and humidity limits। स्टोरेज के अच्छे हालात को यकीनी बनाने के लिए स्टोर रूम का जो डिज़ाइन है ये भी मुवाफिक और साजगार होना चाहिए। स्टोर रूम को साफ और खुश्क होना चाहिए, दर्जा हरारत भी अद्वियात की ज़रूरत के मुताबिक होना चाहिए और नमी भी एक हद तक होनी चाहिए जो कि अद्वियात की ज़रूरत के मुताबिक ही हो। पाँचवें नंबर पर है, स्टोर रूम शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एक्यूमुलेटेड वेस्ट एंड वर्मिन। जहाँ पर अद्वियात को महफूज किया गया है वो जगह बिल्कुल साफ होनी चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई वेस्ट यानी कि कूड़ा वगैरह हरगिज मौजूद ना हो और ना ही उस कमरे के अंदर किसी भी तरह के कोई कीड़े मकोड़े हों। हाँ, अगर कोई कीड़े मकोड़े वहाँ आ जाते हैं तो फौरन से उनको ख़त्म करने का इंतज़ाम भी मौजूद होना चाहिए। इसके बाद 6 नंबर पर है, रिसीविंग एरिया शुड बी डिज़ाइंड एंड इक्विप्ड टू अलाउ इनकमिंग कंटेनर्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू बी क्लीन इफ नेसेसरी बिफोर स्टोरेज। अद्वियात को महफूज करने वाले कमरे को स्टोर रूम कहा जाता है। अब इस स्टोर रूम के बाहर वाली साइड पर या तो कोई सेहन वगैरह बना लिया जाता है या फिर एक अलहदा कमरा बना लिया जाता है जहां पर सबसे पहले अद्वियात को वसूल किया जाता है और इस जगह को रिसीविंग एरिया कहते हैं। अब ये अद्वियात को वसूल करने वाली जो भी जगह है वहां पर भी मुकम्मल तौर पर एक खास किस्म का नक्शा होना ज़रूरी है, वहां पर तमाम तर आलात का मौजूद होना ज़रूरी है और उस जगह को भी बिल्कुल साफ और शफाफ होना चाहिए, वहां पर भी किसी भी तरह के कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर कोई दवाई या फिर किसी भी डिब्बे को पहले से साफ करना ज़रूरी है, यानी कि स्टोर रूम में दवाइयों को दाखिल करने से पहले अगर साफ करना ज़रूरी हो तो आप इसको इसी रिसीविंग एरिया के अंदर साफ कर सकते हैं। ये आपको बात याद रहे कि अद्वियात को वसूल करने के बाद उनको वसूल करने वाली जगह पर ही साफ किया जाता है, उनको स्टोर रूम में दाखिल करने के बाद हरगिज साफ नहीं किया जाता। इसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पर है, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, डेंजरस ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, सिट्रास should be stored in a dedicated areas
that are subject to appropriate additional safety and security measures. ऐसी अद्वियात जो कि ताबकारी मटेरियल्स रखती हों, या फिर ऐसी अद्वियात जो कि ख़ास तौर पर नशा आवर अद्वियात होती हैं, जो कि सेहत के लिए फ़ायदेमंद तो होती हैं, लेकिन हम उनको डेंजरस ड्रग्स का नाम देते हैं। या फिर ऐसी अद्वियात जो कि ख़ास तौर पर नफ्सियात के मरीज़ों के लिए बनाई जाती हैं। तो इन तरह की जितनी भी अद्वियात हैं, इनको स्टोर के अंदर एक ख़ास किस्म की जगह के अंदर रखा जाता है। और ये मैं आपको बात वाज़िया कर दूं कि ये जितनी भी ड्रग्स हैं, जैसे कि ताबकारी वाली या ख़तरे वाली अद्वियात या फिर नफ्सियाती या फिर इसके अलावा नशा आवर जितनी भी अद्वियात होती हैं, इन तमाम अद्वियात को एक महफूज किस्म की जगह पे रखा जाता है। या तो स्टोर रूम के अंदर एक नया कमरा बना दिया जाता है, या फिर एक खास किस्म की अलमारी बनाई जाती है जिसमें इस तरह की अद्वियात रखी जाती हैं, और इस अलमारी को 2 चाबियां लगाई जाती हैं, क्योंकि अगर कोई भी शख्स इसको तोड़ने या खोलने की कोशिश करे तो फौरन से अंदाज़ा हो जाए कि ऐसी कोई गलत एक्टिविटी की गई है। तो इसलिए आपको ये बात वाज़िया रहे कि वो तमाम तर अद्वियात जो कि स्पेशल मेडिसिन होती हैं, इनको ख़ास किस्म की जगह के अंदर ही रखा जाता है और इन पर स्पेशल किस्म की सेफ्टी और सिक्योरिटी अलामात लगा दी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पर है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर्ड इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, मिक्सअप्स एंड क्रॉस कंटेमिनेशंस। ऐसी अद्वियात जिनको मिक्स करना ज़रूरी हो, या फिर कोई भी दवाई हो जैसे शरबत की शीशियाँ या इंजेक्शंस वगैरह, तो इस तरह की तमाम तर अद्वियात को सही से उठाना और सही से महफूज करना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम इन अद्वियात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे होते हैं, तो मुंतकिली के अमल के दौरान हो सकता है कि कोई दवाई एक दूसरी दवाई के साथ मिक्स हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इन दवाइयों को एक साथ रखने से इसके अंदर किसी भी तरह की कोई तब्दीली रूनुमा हो जाए। तो इस तरह से तमाम तर अद्वियात को उठाना और स्टोर करना एक खास तरीक़ेकार से ही किया जाता है। इसके बाद हमारे पास 9 नंबर पर है, अ सिस्टम शुड बी इन प्लेस टू इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ड्यू टू एक्सपायरी फर्स्ट आर सोल्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट। ऐसी अद्वियात जो कि पहले खरीदी जाती हैं, या फिर ऐसी अद्वियात जिनकी एक्सपायरी कम होती है, जो कि जल्द एक्सपायर हो जाती हों, इन सब अद्वियात को पहले आपने सेल कर देना है, इनको आपने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो अद्वियात जिनकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है या एक्सपायरी के करीब तर हैं और आपके इल्म में ही नहीं है, और वो दवाई आपके स्टोर रूम में पड़ी हुई ही खराब हो चुकी है, तो इस तरह से फिर नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी अद्वियात जो कि पहले खरीदी गई हों या फिर जिनकी एक्सपायरी पहले आ रही हो, आप पहले उनको सेल कर दें। इसके बाद हमारे पास 10 नंबर पर है, ब्रोकन और डैमेज आइटम्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द यूजेबल स्टॉक एंड डिस्पोज प्रॉपरली। ऐसी अद्वियात जो कि टूट जाएं, जैसा कि कोई गिलास की बनी हुई चीज़ जैसे शरबत की शीशियाँ या इंजेक्शंस वगैरह की जितनी भी बॉटल्स होती हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के अमल के दौरान अगर कोई चीज़ टूट जाए, या फिर कोई क्रैक वगैरह आ जाए, या फिर कोई टैबलेट्स या कैप्सूल्स के ब्लिस्टर्स कोई डैमेज हो जाए, कोई एक गोली जो है वो दरमियान में टूट जाए या ख़राब हो जाए, तो इस तरह की जितनी भी अद्वियात होती हैं उनको वहाँ से अलहदा कर लिया जाता है। अब ये जो अद्वियात आपने अलहदा की हैं, इनको फिर बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आपको ये बात याद रहे कि इन अद्वियात को स्टॉक में हरगिज़ जो है वो शामिल नहीं किया जाता और ना ही इनको इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इस तरह की अद्वियात को मुकम्मल तौर पर ज़ाया ही करना होता है। इसके बाद 11 नंबर पर है, स्टोर रूम शुड बी प्रोवाइडेड with adequate lighting to enable all operations to be carried out accurately and safely। वो जगह जहाँ पर अद्वियात को महफूज किया गया है
उस जगह पे सही तरह से रोशनी का इंतज़ाम होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम नहीं होगा तो कभी भी आप सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अद्वियात को सही रखने के लिए, अद्वियात को सही तरीक़ेकार से महफूज करने के लिए और वहाँ पर काम करने के लिए रोशनी का सही से इंतज़ाम होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास 12वें नंबर पर है रिकॉर्डेड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग डेटा should be available for the review. The equipment used for monitoring should be checked at suitable predetermined intervals and the results of the such checks should be recorded and retained. वो जगह जहाँ पर अद्वियात को महफूज किया जाता है, इस जगह को हम स्टोर रूम यानी कि अद्वियात को महफूज करने वाला कमरा या फिर इसको वेयर हाउस कहा जाता है। अब ये जो वेयर हाउस है वहाँ का एक सही दर्जा हरारत और वहाँ पर नमी का सही होना इंतहाई ज़रूरी है। अब जाहिरी सी बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस कमरे का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बिल्कुल ठीक है। तो दर्जा हरारत और ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए वहाँ पर एक आला मनसिब किया जाता है। वो जो आला होता है यानी कि जो इक्विपमेंट होता है, ये इक्विपमेंट हमें वक्फे वक्फे से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में बताता रहता है। जब ये आला हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के बारे में जो भी डेटा देगा, उस डेटे को मुकम्मल तौर पर महफूज करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। ख़ास तौर पर ये जो डेटा होता है इसको काफ़ी लंबे अरसे तक यानी कि तकरीबन 2 से 3 माह तक महफूज करना इंतहाई ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात वाज़िया कर दूँ कि 24 घंटों में तकरीबन 5 या फिर 10 बार लाजमन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेक की जाती है, और जो शख्स इस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को चेक करता है वो चेक करने के बाद इस डेटे को एक स्पेशल जो है वो कागज़ के ऊपर नोट डाउन कर देगा, और नोट डाउन करने के बाद उसका वक़्त और अपने साइन लाजमी से करेगा ताकि ये पता चलता रहे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कब और किसने चेक किया है। इसके बाद हमारे पास 13 नंबर पर है इक्विपमेंट्स यूज फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द स्टोरेज कंडीशंस should be calibrated and maintained at defined intervals. Relevant records should be kept and available for inspection by the Department of the Health. वो तमाम आलात जो कि अद्वियात को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन तमाम आलात को वक्फे वक्फे से चेक करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई आलात ख़राब हो जाए तो उसको सही करना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। और जब वो आलात सही होने के लिए वापस किसी कंपनी में या किसी शख्स को दिए जाएं तो उसका वो वक़्त भी लाजमी से नोट कर लिया जाए, ताकि अगर कोई भी सेहत के शोबे से तल्लक रखने वाला शख्स एक बार आपके पास विज़िट करने के लिए आया है तो आप उसको दिखा सकें कि ये आला कब ठीक करवाया गया है और इसमें कितनी मरम्मत करवाई गई है। इसके बाद हमारे पास 14 नंबर पर है ऑल फैसिलिटीज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ पॉइजन्स should be licensed or approved and have the proper security controls. वो तमाम तर अद्वियात जो कि जहर को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम पॉइजनस ड्रग्स कहते हैं। इस तरह की अद्वियात को एक ख़ास किस्म के तरीक़ेकार से ही महफूज किया जाता है, और इस तरह की अद्वियात को महफूज करने के लिए हमें स्पेशल लाइसेंस की भी ज़रूरत होती है, और वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना भी ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात होती हैं जिनको हम स्टोर रूम के अंदर रखी गई एक अलमारी के अंदर ही महफूज करते हैं, या तो उस स्टोर रूम के अंदर अलमारी रख ली जाती है या फिर उस स्टोर रूम के अंदर एक नया स्टोर रूम बना दिया जाता है जहाँ पर किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती सवाए वहाँ के मैनेजर और फार्मासिस्ट को, और उन्हीं के पास चाबियां होती हैं और वही इन अद्वियात को देखते और कंट्रोल करने का इख्तियार रखते हैं। इसलिए आपको ये बात वाज़िया रहे कि ख़ास कर जो अद्वियात होती हैं जो कि पॉइजन्स या फिर कोई भी सिस्टम की अद्वियात हैं, तो इस तरह की अद्वियात को लाइसेंस के साथ ही महफूज किया जाता है, और इनको महफूज करने के लिए स्पेशल किस्म की सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी
رکھا جاتا ہے۔